Hello guys, good morning to all. I welcome all of you to our third session of Android Study Jams. Okay, so we will start our session. So we have completed two sessions last week. So in first session we studied about Kotlin features, Kotlin syntaxes, Kotlin basics, and also about Android Studio, how we can use it, how to deal with Android Studio, what are different facilities available in Android Studio. Then in second session, we developed two applications. That is, first one was a basic layout, happy birthday card app, and then second was dice roller app, in which we studied about views and view groups. So coming to next slide. We have learning objectives. So these are the objectives which we require. This we have seen in last two sessions also. We have to study Kotlin programming language, then best practices for Android development, discover resources to continue learning. And coming to next, these are prerequisites: computer experience in OOP language, programming experience, computer internet connection, etc. Then these were the layouts which we studied. Then in layouts we have views, view groups. So in views we have text view, image view, button. So these are the things we required to develop particular any app in Android Studio. These are the view groups: frame layout, linear layout, constraint layout. So these all things we have seen in our previous session number 2. So these were the XML file which we have seen while developing basic layout Happy Birthday app. Okay, so these are the Kotlin cones. So what are Kotlin cones? So this is the Kotlin developed modules in which you can learn all the basics of Kotlin. So like I will show you here. Okay, so this is the Kotlin Cones website which we have opened. So this is the link I will put in the description box. You please refer this, and you have to go here, start Kotlin Cones. So here you have to do start now. Then you have basic syntaxes. This is function, hello world program. Then this is named arguments, default arguments, how to give default named arguments in Kotlin, then lambdas, then what are strings, how to use strings, then what are data classes, how to write data classes in Kotlin. So these are all the things given. Then here we have conventions, collections in the sense set, list, all the things. So here you can get all the basics of Kotlin. So I will put this particular link in the description box. Okay, and coming back, so here we have two tracks. So I think you have started these tracks. These are not the big any where you can require 1 month or 2 months. So here you can complete this between 2 weeks or 1 week itself. So if you complete this prior programming experience track before 25th Jan, that is tomorrow, so you can get Google certificate from Google. So it's my request to you, please complete it. And now we will move towards our first topic of today's session, that is Color My Views app. So we will develop Color My Views app. So I will just show you what we are going to do. So this is what our app is. So this we have 1, 2, 3, 4, total 5 text views created here. And similarly we have 3 buttons, red, yellow and green. So how to play? This is one line given here, tap the screen and buttons. So we can change the color of this particular text views or by clicking here. So just I will click on this first box. So see, box 2 color has been changed to green. So if I click this one, it has been changed to gray. Then box 3 has blue color. Then box 4 has pink color, and then box 5 has again blue color.
Similarly, if I click here on red button, so box 3 color changes to red. Then if yellow, box 4 color changes to red, and if green, box 5 color changes to green. So what is this and how we have done this type of this coding, we will see it. So this is our Android Studio we have moved towards. So this is our app. I have already created this particular project. So you can create this by simply go to file, then simply new, then new project, and then empty project, and you can proceed with next. So अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंड्रॉइड स्टूडियो में, जिसमें हमने एक ये ऐप है हमारा। यहाँ से हम जितना चाहे उतने एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारी मेन एक्टिविटी यहाँ पर है मेन एक्टिविटी डॉट kt। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कितने भी एक्टिविटीज़ आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, जहाँ पर हम इंटेंट यूज़ करके शिफ्ट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। तो जस्ट हमने ये देखेंगे कि अभी कोड कैसे करते हैं। तो ये हमारी XML फाइल है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल टेक्स्ट व्यूज़ है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले इस पर, ये हमने कैसे किया ये मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हमने टेक्स्ट व्यू हम यहाँ से यहाँ ड्रैग करते हैं और उसको हमने कंस्टेंट लेआउट दिया हुआ है। कंस्टेंट लेआउट का मतलब जो हमने पिछले बार भी डाइसोलर ऐप क्रिएट किया था तो उसमें हमने कंस्टेंट लेआउट दिया था। अगर वो नहीं देते हैं तो जो हमारे टेक्स्ट व्यूज़ है वो सब ओवरलैप हो जाएंगे, एक के ऊपर एक, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इट विल नॉट लुक नाइस and it will not proper Android app. So we have to give a layout. So just for giving layout you have to just do here and you have to give till constraint layout. So this is constraint layout. So I will click on the box 1. So here you can see in this box 1 text, here ID is box underscore 1 underscore text. So this is the ID which is very important, which we will require in our coding to give color to this particular box using its ID. So this is box 1 underscore text, then this is box 2 underscore text, this is box 4 underscore text, so likewise, and here we have 3 buttons. So we have given first button as red underscore button ID, then we have given second button as a yellow underscore button, and similarly third as green. Okay, so now I have shown you what we have done in XML file. I will show you just code for this. So जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं XML की डिज़ाइन में तो कोड जो है उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमने 5 टेक्स्ट व्यू कलेक्ट किए, ड्रैग किए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 और ये वाला 5, ऐसे 5 टेक्स्ट व्यू। और जो 6 टेक्स्ट व्यू था वो था नीचे जो लाइन थी कि हाउ टू प्ले, ये उसका टेक्स्ट व्यू है। और हमारे पास 3 बटन है यहाँ पे जो हमने लिखे रेड ग्रीन और येलो। तो देखिए कोड में देखा जाए तो यह कंस्टेंट लेआउट यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट व्यू देखेंगे हम। पहला तो इसका जो नाम है वो है बॉक्स अंडरस्कोर 1, उसके बाद सेकंड का नाम है बॉक्स अंडरस्कोर 2। यहाँ पे हम चेंज करते जाएंगे, जब हम वहाँ चेंज करें तो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होगा, बॉक्स अंडरस्कोर 3। सो ये वाइस वर्सा है, आप चाहे तो कोडिंग भी कर सकते हैं या आप चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हैं, दोनों भी एज इट इज़ सेम आउटपुट देंगे। तो बॉक्स 4, उसके बाद बॉक्स 5, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है हाउ टू प्ले। एंड जो लास्ट टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर है टैप द बॉक्सेस एंड बटन्स, जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट व्यू था उसके सामने का वो। सिमिलरली 3 बटन है यहाँ पर, जिसका नाम बटन रेड है, बटन येलो है और बटन ग्रीन है। ओके, तो ये था हमारा XML। अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के पास। तो जैसे हमने अभी तक स्टडी किया है कि जो जावा की मेन एक्टिविटी होती है वो कहाँ होती है, इस जावा के फोल्डर में, इस पैकेज के अंदर मेन एक्टिविटी। और जो हमारी लेआउट फाइल है XML फाइल वो होती है RES फोल्डर में, लेआउट के अंदर एक्टिविटी डॉट मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। तो अब जब हम मेन एक्टिविटी में आते हैं, सो व्हाट वी सी हियर वी हैव पैकेज नेम, देन वी हैव android.graphics.color। अभी क्या है
तो ग्राफिक्स इसलिए चाहिए क्योंकि हम डायनामिकली कलर चेंज करने वाले, इसलिए हमने ये पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। या और उसके बाद हम व्यू चाहिए, तो व्यू ये ऑटोमेटिक आ ही जाता है जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो बटन का जो पैकेज है वो इंपोर्ट हो जाता है। सिमिलर विद टेक्स्ट व्यू, सिमिलर विद ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी। अभी ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी में बता चुका हूँ कि ये काम करता है XML और Kotlin फाइल को कनेक्ट करने का। ओके, अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में। तो वी हैव हियर this particular class which is generated automatically by after creating the project। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी मेन और मेन एक्टिविटी Kotlin फाइल को कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट लिसनर से एक फंक्शन कॉल किया है। तो हम सारा कुछ जो काम है इस एप्लीकेशन का वो इस फंक्शन के अंदर है। तो अब हम इस फंक्शन की डिक्लेरेशन और वो सब देखेंगे कि उसके अंदर क्या किया है। तो जैसे कि आपको पता है हमने क्या किया है, हमारे पास टोटल 5 टेक्स्ट व्यूज़ है 3 बटन से। तो हमने यहाँ पर उस बटन के हिसाब से नाम हमने डिक्लेयर कर लिए, बॉक्स 1 टेक्स्ट, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 एक्सेट्रा। अब हम क्या करेंगे कि फाइंड व्यू बाय आईडी। तो XML फाइल में उस आईडी के नाम से, अब हमें पता है कि हमने बॉक्स अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम के आईडी से एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया था। तो उस आईडी के नाम से टेक्स्ट व्यू को फाइंड करेगा जो बॉक्स 1 टेक्स्ट को उसको कनेक्ट करेगा बॉक्स 1 टेक्स्ट के साथ। सिमिलरली बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5, ये हो गया हमारे 5 टेक्स्ट व्यूज। अब हम देखेंगे यहाँ कंस्टेंट लेआउट। तो ये एक वेरिएबल है रूट कंस्टेंट लेआउट। तो ये क्या करेगा, कंस्टेंट लेआउट जो हमारा टोटल XML फाइल में जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के अंदर है जो बैकग्राउंड है पूरा, उस बैकग्राउंड पे आईडी कंस्टेंट लेआउट है। इसलिए हमें वो चाहिए क्योंकि जो यहाँ पे बाजू में अगर हम क्लिक करते हैं इधर तो उसकी आईडी कंस्टेंट लेआउट है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल असाइन किया है कंस्टेंट लेआउट, रूट कंस्टेंट लेआउट। तो उसके लिए हमने आईडी असाइन किया है रूट कंस्टेंट लेआउट। उसके बाद नीचे आते हैं रेड बटन, ग्रीन बटन, येलो बटन। ये 3 बटन है हमारे पास, जिसके लिए भी हमने फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करके इसको आईडी असाइन किए है, रेड बटन, ग्रीन बटन, येलो बटन। अब नीचे यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो शुरू होता है। अभी वैल्यूएबल क्लिकेबल व्यूज। सो क्लिकेबल व्यूज है एक एरे। एरे मतलब एक लिस्ट है। देखिए हमने यहाँ पे लिस्ट इसको डिक्लेयर किया है, लिस्ट व्यू इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ। तो लिस्ट ऑफ पता है आपको कि ये इनबिल्ट फंक्शन है लिस्ट ऑफ, जो लिस्ट क्रिएट करता है। तो हमने जितने भी वैल्यूज वेरिएबल्स है क्रिएट किए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 4, 5, देन रूट कंस्ट्रेंट, देन रेड बटन, ग्रीन बटन, येलो बटन, सब हमने इस लिस्ट ऑफ मतलब इस लिस्ट में क्लिकेबल व्यूज लिस्ट में हमने डाल दिए। अब यहाँ पे फॉर लूप का क्या काम है, तो आइटम हमें पता है फॉर आइटम इन क्लिकेबल व्यूज। तो आइटम है एक वेरिएबल है, जैसे हम C++ में यूज़ करते हैं, जावा में यूज़ करते हैं। फॉर आई इन सपोज इन स्ट्रिंग इज देयर, फॉर आई इन ए एक एरे है, तो हम चेक करेंगे कि आई ए में है कि नहीं। तो यहाँ पर कैसा है, आइटम इन क्लिकेबल व्यूज। तो क्लिकेबल व्यूज हमारे पास एक लिस्ट है। अब वो चेक करेगा कि आइटम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो आइटम मतलब हमारे ये जो सारे बॉक्स 1 टेक्स्ट, बॉक्स 2 टेक्स्ट, ये सारे आइटम्स है। तो जब वो चेक करेगा कि बॉक्स 1 टेक्स्ट इस लिस्ट में है कि नहीं, अगर वो है तो वो इस मेक कलर और उसके अंदर आईटी एक वेरिएबल है जो हमने पास किया है, उसको कॉल करेगा। अब मेक कलर एक फंक्शन है जो हमने नीचे यहाँ पर एक बनाया है, मेक कलर फंक्शन। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, तो वो भी हम देखते हैं। तो साथ ही इस फॉर लूप को अगर आपको समझ में आया होगा, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम फॉर लूप का यूज़ क्यों कर रहे हैं। फॉर लूप का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लिस्ट है उसके अंदर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 जो भी हम क्लिक करेंगे आइटम, उसको वो मेक कलर कॉल करेगा और मेक कलर कॉल करने के बाद इस फंक्शन को वो कलर चेंज करेगा। अब हम आते हैं मेक कलर के पास। देखिए हमने कमेंट दिया, सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ व्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स रिसोर्स आईडी। तो इस फंक्शन का काम यही है
कि वो बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। शायद आपको विजिबल ना हो, ओके हो सकता है आप दिख रहा हो। तो दिस इज आवर मेन मेक कलर फंक्शन। सो वी हैव प्राइवेट फन मेक कलर व्यू व्यू। तो व्यू कोलन व्यू क्यों दिया जाता है? व्यू इसलिए क्योंकि हमने टेक्स्ट व्यूज यूज किए, इसलिए व्यू देते हैं। और वेन व्यू डॉट आई डी, तो ये जो व्यू है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, वो इस व्यू का असाइन होगा। जो भी हम क्लिक करेंगे बॉक्स 1 बॉक्स 2, तो उसका जो आईडी होगा व्यू डॉट आई डी, तो अगर वो आईडी बॉक्स 1 का होगा, देखिए यहाँ पर आर डॉट आई डी डॉट बॉक्स 1 अंडरस्कोर टेक्स्ट, तो उसको हम चेंज करेंगे सेट बैकग्राउंड कलर टू डीके ग्रे। तो डीके ग्रे मतलब ग्रे, ये हमारा कोडिंग लैंग्वेज में डीके ग्रे होगा। तो वैसा ही वेन अगर हमने बॉक्स 2 को क्लिक किया, तो बॉक्स 2 टेक्स्ट का कलर हो जाएगा सेट बैकग्राउंड कलर ग्रीन। सेम ईयर बॉक्स 3 का हो जाएगा ब्लू, देन बॉक्स 4 का हो जाएगा मैजेंटा यानी कि पिंक, और बॉक्स 5 का हो जाएगा वापस ब्लू। तो आप अपने हिसाब से यह कलर दे सकते हैं ताकि वो और इंटरेस्टिंग लगे। सिमिलरली बटन्स का क्या काम है? अगर आपको बटन क्लिक करने के बाद बॉक्स के रंग चेंज करने, कलर चेंज करने, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट रेड बटन है। तो रेड बटन क्या है अपने पास? बटन का आईडी। उसके अंदर अगर हमने बटन को क्लिक किया, रेड बटन के आईडी के टेक्स्ट व्यू को बटन को हमने क्लिक किया, तो क्या करेगा? वो बॉक्स 3 अंडरस्कोर टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड में चेंज करेगा। सिमिलरली अगर येलो बटन को क्लिक किया, तो बॉक्स 4 को वो चेंज करेगा येलो में। सिमिलरली अगर 5 को क्लिक ग्रीन बटन को क्लिक किया, तो वो बॉक्स 5 को चेंज करेगा ग्रीन में। तो आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि आप 3 4 5 चाहिए, आप यहाँ 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। और अगर एल से, तो एल सेट बैकग्राउंड कलर हो जाएगा लाइट ग्रे। तो टोटल जो बैकग्राउंड कलर है, अगर आपने किसी को क्लिक नहीं किया, तो जो कंस्ट्रेंट लेआउट का कलर है वो ग्रे में चेंज हो जाएगा। सो ये था हमारा ओवरऑल एप्लीकेशन जो हमने बनाया, व्यूज कलर माई व्यूज ऐप। तो देखिए, अगर हम फिर से इसे देखेंगे, देखिए जब हमने यहाँ क्लिक किया, तो जो कंस्ट्रेंट लेआउट का कलर है वो ग्रे में चेंज हो गया। अगर मेन एक्टिविटी में अगर इसको हम चेंज करते हैं, सपोज रेड या फिर ग्रीन, या हमने यहाँ एक चेंज किया है, ग्रे निकाल के हमने ग्रीन किया है। और अगर हम इसे दोबारा रन करेंगे, हाँ अभी रन करने की प्रोसीजर तो पता ही है आपको, ईवीडी मैनेजर आपने इंस्टॉल कर ही लिया होगा, या कम से कम 3 GB के आसपास तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो और ईवीडी मैनेजर लगी गई। इसलिए लैन कनेक्शन पे ही या ब्रॉडबैंड पे ही उसे इंस्टॉल करना। यहाँ ग्रिडल बिल्ड हो रहा है। ग्रिडल मतलब अपना C++ का कंपाइलर, तो वैसे एंड्रॉयड में यहाँ ग्रिडल है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम तो लगता ही, इसलिए रुकना ही पड़ेगा। ओके, इट इज जस्ट रनिंग। Okay, now the build is successful. So we will terminate the previous one and we will install the latest one. See here, it is now checking for target device. Now it is installing. Okay, so I think now it has got installed. So we will just open the emulator again, and now see when I tap the background, it has changed to green.
Now box 2 has changed to green, box 1 has changed to gray, box 3 blue, box 4 and box 5. Here you have two text views. Tap the screen and buttons. So when we tap to red, it goes to red. येलो को क्लिक किया तो येलो हो जाएगा बॉक्स 4. ग्रीन को क्लिक किया तो बॉक्स 5 ग्रीन हो जाएगा. सिमिलरली सो ये था हमारा पूरा कलर माई व्यूज एप्लीकेशन. अगर किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, चैट सेक्शन में डाल देना. ओके तो आज अब हम चलेंगे हमारे आज के दूसरे ऐप के पास जो था हमारा अबाउट मी ऐप. तो अबाउट मी ऐप जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे हम हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करेंगे एज इट इज़. हमने जो भी डाला है एंड्रॉयड ऐप के उस टेक्स्ट के अंदर तो वो डिस्प्ले करेंगे हम. तो जब हम यहाँ जाएंगे फाइल में, ओपन, रिसेंट, then about me, this window, terminate. Okay. Now it is getting open. तो एंड्रॉयड स्टूडियो के हर एक चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए पेशेंस रखना. ओके सो ये हमारा अबाउट मी ऐप जो है वो खुल चुका है. So see here now we have Java, then package and main activity. So after creating the project we know that this is the by default code generated by Android. So यहाँ पे हमने main activity में about me के लिए कुछ भी चेंज नहीं किया, as it is हमने वैसे ही रखा है. हमने जो कुछ भी किया है वो किया है XML फाइल में. देखिए XML फाइल अभी XML फाइल में हमारे पास यह लीनियर लेआउट है. हमने यहाँ पे कस्टर्ड लेआउट नहीं यूज़ किया, हमने लीनियर लेआउट यूज़ किया है क्योंकि हमें एक के नीचे एक बाय सीक्वेंस में हमें डिस्प्ले करना है. जैसे पहले अबाउट मी, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद एक इमेज व्यू दिया हमने, यहाँ इमेज व्यू दिया है. इमेज व्यू भी आपको पता है कैसे लिया जाता है. ओके नाउ वी हैव लीनियर लेआउट हियर, देन वी हैव वन टेक्स्ट व्यू दिस. ओके सबसे पहले आपको मैं रन करके बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगा कि हमने ये किया क्या है. सो अगेन वी विल स्टार्ट बिल्ड ग्रेडिंग, ग्रेडल बिल्ड. ओके बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है. ओके तो ये रहा हमारा अबाउट मी ऐप जहाँ पर ऊपर नाम डिस्प्ले हो रहा है. उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी आप डालेंगे. तो ये स्क्रॉल व्यू राइट. तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ किया है. उसके बाद यहाँ टेक्स्ट व्यू है इस नाम के लिए. उसके बाद यहाँ पर हमारा इमेज व्यू है उस स्टार इमेज के लिए, इस स्टार के लिए ये जो स्टार इमेज व्यू है. और उसके बाद हमने नीचे यूज़ किया स्क्रॉल व्यू. तो स्क्रॉल व्यू जैसे आपको पता ही है ऊपर नीचे हम इसे स्क्रॉल कर सकते हैं. तो स्क्रॉल व्यू के अंदर क्या एक टेक्स्ट व्यू है, जिस टेक्स्ट व्यू के अंदर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है. जैसे याद दिया देखिए माई नेम इज अलास्का एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस चीज़ का नाम उसकी आईडी जो है टेक्स्ट व्यू की वो है बायो, इसलिए हमने यहाँ पे बायो आईडी दी हुई है. अब ये जितनी भी बायो है पूरी जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी आदमी की या किसी भी पर्सन की, तो वो कहाँ स्टोर करेंगे हम इस RES के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, strings.xml में हमने यहाँ पे सब कुछ लिया है. तो देखिए स्ट्रिंग नेम यहाँ पे है अबाउट मी. उसके बाद यहाँ पे नेम है उसका एलेक्स है कि. उसके बाद जो येलो स्टार है वो हमने लिया है और बायो नाम दिया है. देखिए ये बायो नाम हमने वहाँ लिया है.
XML फाइल में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, माई नेम इज़ डैश डैश, उसके बाद यहाँ पे आपको जो चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो दिस इज सिंपल अबाउट मी ऐप, यहाँ पे हमने उसकी कोडिंग की हुई है string.xml में, और बस XML फाइल हो गई अपनी, जहाँ पे डिज़ाइन में देखिए हमने क्या किया है। यस, तो डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे इमेज व्यू है, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है जहाँ पे हमने स्क्रोल यूज़ किया है कोडिंग के अंदर। इसलिए जो बड़े जो भी पैराग्राफ्स है वो हम वहाँ पे बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसलिए अब इसको रन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका आउटपुट था क्या। जैसे सिंपल अबाउट मी ऐप, जहाँ पे नाम है, इमेज व्यू है, कुछ भी दे सकते हैं, और ये आपकी इंफॉर्मेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट दी अबाउट मी ऐप। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दीजिए। ओके, या फिर इमेज व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए आपको सेशन 1 की रिकॉर्डिंग देखनी होगी, और व्यू ग्रुप्स के लिए आपको सेशन 2 की रिकॉर्डिंग देखनी होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने पहले 2 सेशंस अटेंड नहीं किए थे तो। दिस वाज ऑल अबाउट माय अबाउट मी। Okay, so till now we have done with 2 applications, simple applications which we have built. Now we will move towards our third application. Before that, so this was the total Android study jams courses. So I hope everyone have started this. Previously I have shown this. So just you have to, in prior programming, you have to start the course. Let's say it is loading. ओके, तब तक हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट ऐप है जो हम बनाने वाले हैं वो है टिप कैलकुलेटर ऐप। तो टिप कैलकुलेटर ऐप, जैसे मैंने पिछले सेशन में एंड में बताया था कि कोई वर्कर है, उसे हम उसके अच्छे काम के लिए कुछ टिप देते, तो वो टिप कितनी होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब उसके काम के हिसाब से, मतलब उसने अमेजिंग काम किया है, बहुत अमेजिंग, तो या फिर उसने गुड, या फिर उसने ठीक ठाक, तो हम कुछ परसेंट देंगे। अमेजिंग के लिए 20%, देन गुड के लिए 18%, और ठीक ठाक के लिए देंगे हम 15%। तो अगर वर्कर का काम के हिसाब से अगर उसके 100 रुपये बनते हैं, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया तो 20% के हिसाब से उसको 20 रुपये टिप मिलनी चाहिए। तो ये ऐप हम अभी डेवलप करेंगे। सो लेट ओपन दैट टिप टाइम। Okay, it is now getting opened. Till that time, now it has been open Android Kotlin fundamentals. So this is the prior programming track that you have to complete. So here you will earn 5 badges, and here more 5 badges. So total 10 badges are there for this unit 2. When you will complete both the units, you will get certificate from Google. So now when we will explore this, यहाँ पे हमारा टिप कैलकुलेटर प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास
टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 5 यहाँ पर हमारे पास पाथवे मैं सब कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे टोटल 100% आ चुका है। तो देखिए आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, डेटाबेसेस इन कॉटलिन, देन कनेक्ट टू इंटरनेट, रिपोजिटरी एंड वर्क मैनेजर, डिज़ाइन फॉर एवरीवन, पे ये सब चीज़ें कॉटलिन के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर आप कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सब आप यहाँ पर सीखेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एक्सप्लोर करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इसके अंदर क्विजेस हैं, जो क्विज़ आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेड अटेम्प्ट्स नहीं है। जब तक आप पास नहीं होते तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एंड्रॉइड स्टूडियो अगेन। ये हमारा टिप कैलकुलेटर ऐप। ओके, सबसे पहले मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ कि एक्चुअली हमने किया क्या, क्या करना है हम, तब आपको कोड समझ में आएगा उसका कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। अब यह एक बाइंडिंग का कंसेप्ट है जो नया है, तो बाइंडिंग क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो बाइंडिंग का कंसेप्ट ऐसा है कि जब हमने अभी कलर माय व्यूज ऐप में देखा कि हम वहाँ पे XML फाइल में से जब हम कॉटलिन फाइल में जब व्यू आईडी के हिसाब से जब हम स्टोर करते किसी वेरिएबल में, तो हम क्या करते हैं, सपोज वेरिएबल क्या किया था हमने, फर्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id बॉक्स अंडरस्कोर 1, राइट। तो हम वहाँ पे क्या किया था, फाइंड व्यू बाई ID किया था हमने। तो वहाँ पे टेक्स्ट व्यू था जो हमने फाइंड किया था उसके आईडी के हिसाब से, जो भी उसका आईडी होगा वो हमने स्टोर किया था बॉक्स 1 के अंदर। तो अब यहाँ पे फाइंड व्यू बाय ID की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने बाइंडिंग का यूज़ किया तो। बाइंडिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस है कि वो क्रैश नहीं करता किसी एंड्रॉयड ऐप को। सपोज बाय चांस अगर हमने फाइंड व्यू बाय ID किया और ग्रेडल को आईडी मिला ही नहीं पूरे XML फाइल में, तो वो क्रैश कर सकता है पूरे एंड्रॉयड ऐप को। लेकिन अगर हम वहाँ पे बाइंडिंग यूज़ करेंगे, बाइंडिंग मतलब ये वाला बाइंडिंग, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, तो तब वो कुछ एरर नहीं देगा या फिर वो अच्छे से उसको रन करेगा, वो क्रैश नहीं करेगा। ओके, द बिल्ड इज सक्सेसफुल नाउ, लेट्स चेक। Okay, so this is our output. Yeah, this is our main application. So just I will tell you what we have done. Cost of service. So just we will give 200. Then how was the service by that particular worker? So if it is very amazing, then as I said you that we will give him 20%. Then it is okay. Oh, so sorry, good. So it will be 18%. And if it is okay, ठीक ठाक, तो वो उसको 15% के हिसाब से टिप देगा। और यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन दिया है, राउंड अप टिप। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर सपोज पॉइंट में आंसर आता है 20.15, 20.30 या फिर 20.70, तो वो उसको राउंड अप कर देगा, सील कर देगा 21 पे डायरेक्ट। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 20% के हिसाब से, तो यहाँ पे आंसर है 40। तो जैसे हमें पता है 200 का 10% होगा 20 और 20% होगा ऑब्वियसली 40। तो यहाँ पे डॉलर, तो डॉलर इसलिए लिया है क्योंकि हमने प्रोग्राम में यहाँ पे करेंसी जो यूज़ की है वो डॉलर यूज़ की है। ओके, तो अब ये एप्लीकेशन हम बनाए कैसे और उसकी कोडिंग कैसे है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी मेन, तो डिज़ाइन में जाएंगे। जैसे आपको पता है अपन ने यहाँ पर वी हैव टेकन वन टेक्स्ट व्यू, राइट। तो उस टेक्स्ट व्यू की आईडी है कॉस्ट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्विस, ये वाली एडिट टेक्स्ट। सो ये हो गई पहले टेक्स्ट व्यू की आईडी। उसके बाद जो सेकंड है वो भी टेक्स्ट व्यू है, उसका नाम है सर्विस अंडरस्कोर क्वेश्चन, जो हम पूछते हैं। ये जो रेडियो बटन है उसके आईडी जो है ऑप्शन 20%। उसके बाद सेकंड का है ऑप्शन 18%, यहाँ पे हम आईडीज देंगे कुछ से। और तीसरे का नाम है ऑप्शन 15%।
और यहाँ पे चौथा टेक्स्ट बॉक्स है, वो उसका नाम है राउंड अप स्विच। तो हमने यहाँ पे स्विच यूज़ किया है। अगर आपको राउंड अप करना है तो उसको ऑन कीजिए, इनेबल कीजिए, नहीं करना है तो उसे ऑफ रखिए। और ये लास्ट है वो है बटन। तो बटन का नाम है कैलकुलेट अंडरस्कोर बटन। और नीचे यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू हमने यूज़ किया है, जो कैलकुलेटेड जो भी उसकी टिप होगी वो डिस्प्ले करेगा। उसका नाम है टिप अंडरस्कोर रिजल्ट। तो इतना आप याद रखिए कि XML फाइल में आईडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आईडी से ही हम प्रोग्राम में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि कलर्स हो गए, बहुत कुछ है यहाँ पर जो हम दे सकते हैं। देखिए स्टाइल है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट थीम, सो लाइक दिस। तो अभी हमें चलना चाहिए एक्टिविटी फाइल के ऊपर। So as it is, so after creating the project, we have total here 7 to 8 packages which we have imported. तो देखिए अभी हमने यहाँ बाइंडिंग यूज़ किया है। तो बाइंडिंग इनपुट मेथड मैनेजर, तो ये क्या है? यूज़र इनपुट, जो हम यूज़र से लेने वाले कितना कॉस्ट हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पे इनपुट मेथड डॉट इनपुट मेथड मैनेजर की पैकेज इंपोर्ट किया है। साथ में ऐप कॉम्पैक्ट भी है, साथ में एक्टिविटी मेन बाइंडिंग भी है। जैसे आपको पता है डेटा बाइंडिंग, तो यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी हम ना यूज़ करते हुए डेटा बाइंडिंग को यूज़ करेंगे, राइट, ये वाला। और नंबर फॉर्मेट, तो वो नंबर के लिए करना है ऑब्वियसली। तो जैसे हम नीचे आते तो देखिए हमारी मेन एक्टिविटी स्टार्ट होगी। बाइंडिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेंस विद एक्सेस टू द व्यूज इन द एक्टिविटी मेन डॉट XML लेआउट। तो जो बाइंडिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है, जो लेट इनिशियलाइजेशन है यहाँ पर बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, तो ये जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है वो XML फाइल जो एक क्लास उसका तैयार करेगी। और वो जो क्लास होगा वो हम बाइंडिंग जो वेरिएबल है हमारा उसको हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। बाइंडिंग जो है वो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है। तो ये जो बाइंडिंग ये काम करेगा एक्टिविटी मेन को और इस कोटलिन फाइल को कनेक्ट करने का। जैसे हमने प्रीवियस देखा था कि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं r.id.set कंटेंट लेआउट, उसके बाद हम देते हैं main.xml नाम, तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे फंक्शन ऑन क्रिएट एज ऑब्वियस ये चीज़ चाहिए इंस्टेंस स्टेट को सेव करते रहने के लिए। अब यहाँ देखिए इन्फ्लेट द लेआउट XML फाइल एंड रिटर्न अ बाइंडिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। तो ये जो बाइंडिंग है, ये जो हमारे मेन एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट है, हम उससे इन्फ्लेट करेंगे। अब इन्फ्लेट करना मतलब क्या? ये जो इन्फ्लेट है, इन्फ्लेट करना मतलब हम इसे XML फाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज लेआउट इन्फ्लेटर, जो हमारी लेआउट है .xml फाइल एक्टिविटी मेन, उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। सेट कंटेंट व्यू बाइंडिंग डॉट रूट, तो जो हमने वह कंटेंट व्यू को सेट किया था r.id.main.xml, यहाँ पे हम बाइंडिंग सीधा बाइंडिंग जो ऑब्जेक्ट है डॉट रूट, तो रूट मतलब क्या? जो लेआउट इन्फ्लेटर है, लेआउट इन्फ्लेटर में क्या है? एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग में क्या है? .xml फाइल, तो वो रूट जो हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ बाइंडिंग डॉट रूट यूज़ किया है। कमिंग टूवर्ड्स डाउन, we have set up a click listener on the calculate button to calculate the tip. Now we have one button, calculate button, right? जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास यहाँ पर एक बटन है कैलकुलेट, ये वाला। तो इस कैलकुलेट बटन को ऑन क्लिक लिसनर एक ये देंगे हम, क्या फंक्शन कॉल करेंगे। तो जब हम कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे सेट क्लिक लिसनर, तो कैलकुलेट टिप नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। अब जो कुछ भी है वो कैलकुलेट टिप के अंदर ही। ओके, सो अब हम आएंगे नीचे कैलकुलेट टिप फंक्शन में। तो जैसे आपको पता है कि हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है ऊपर यूज़र से इनपुट लेने के लिए, राइट, ये वाला टेक्स्ट व्यू जहाँ पे 200 हमने दिया है कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो उस टेक्स्ट व्यू को हम देखिए ये वाला जो वेरिएबल है स्ट्रिंग इन टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट कॉस्ट ऑफ सर्विस एडिट टेक्स्ट,
तो कॉस्ट ऑफ सर्विस एडेड टेक्स्ट है क्या है, उस टेक्स्ट का आईडी मतलब उस आईडी का नाम है। और बाइंडिंग क्या है, ये मेन एक्टिविटी फाइल का इंस्टेंस है। तो हमने क्या किया, बाइंडिंग डॉट कॉस्ट ऑफ सर्विस एडेड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट क्यों, क्योंकि वो टेक्स्ट व्यू है, इसमें हम टेक्स्ट ही डालेंगे। टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग यहाँ पे फंक्शन हमने यूज किया है, या तो वो नंबर होगा या तो वो स्ट्रिंग होगा, उसी हिसाब से वो कन्वर्ट करेगा। और नीचे एक वेरिएबल एक कॉस्ट, तो स्ट्रिंग इन टेक्स्ट फील्ड टू डबल और नल, तो या तो वो जीरो होगा या तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, इसलिए हमने उसकी डेटा टाइप डबल ली है, टू डबल और नल। तो ये हो गया हमारे दो वेरिएबल्स, एक यूजर से इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग इन टेक्स्ट फील्ड और दूसरा डिस्प्ले करने के लिए कॉस्ट। नहीं, कॉस्ट डिस्प्ले करने के लिए नहीं, मतलब कॉस्ट हम जो लेने वाले हैं यूजर से। स्ट्रिंग इन टेक्स्ट फील्ड मतलब ये तो टेक्स्ट व्यू होगा, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो, और उसके अंदर जो कॉस्ट हम डालेंगे वो उसकी कॉस्ट होगी 200 300 जो भी डालेंगे वो। अब नीचे आते हैं, इफ कॉस्ट इज नल और जीरो देन डिस्प्ले जीरो एंड एग्जिट दिस फंक्शन अर्ली। अब कॉस्ट अगर नल है, हमने कुछ डाले नहीं, तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा ना, कैलकुलेट पे क्लिक करना और कितने हो गए वो देखा, इसलिए वो डायरेक्ट जीरो जो है वो रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर कॉस्ट इक्वल टू नल और कॉस्ट इक्वल टू जीरो, द डिस्प्ले टिप 0.0। अब डिस्प्ले टिप क्या है, डिस्प्ले टिप भी एक फंक्शन है जो हम नीचे लिए है, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले टिप ये वाला, तो इस फंक्शन को भी हम नीचे आके देखेंगे अब क्या है। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट हमने जीरो डाली या कुछ डाली नहीं, नल है, तो वो 0.0 को रिटर्न करेगा। ओके, अब गेट द टिप परसेंटेज बेस्ड ऑन विच रेडियो बटन इज सिलेक्ट। अब हमारे पास 3 रेडियो बटन है, राइट। पहला था अमेजिंग, दूसरा था गुड, तीसरा था ओके। तीनों को हमने कुछ परसेंटेज असाइन किए हैं, मतलब एक को 20, एक को 15 और एक को 18, तो वो परसेंटेज यहाँ असाइन किए। तो टिप परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल है, जहाँ पे वेन मतलब मैंने बताया आपको स्विच केस, तो हम यहाँ पे स्विच केस करेंगे कि यूज़र ने फर्स्ट रेडियो बटन को चूज़ किया या सेकंड को किया या थर्ड को किया, उस हिसाब से उसके परसेंटेज से हम कैलकुलेट करेंगे। तो व्हेन बाइंडिंग डॉट टिप ऑप्शंस डॉट चेक रेडियो बटन आईडी, तो ये जो है पूरा बाइंडिंग डॉट टिप ऑप्शंस डॉट चेक रेडियो बटन आईडी, ये पूरा एक फंक्शन है। फंक्शन नहीं बोलते इसको, हम लोग बोलेंगे कीवर्ड है पूरा, या फिर फंक्शन है कि चेक रेडियो बटन आईडी, मतलब जो भी रेडियो बटन यूज़र ने चेक किया है, जिस पे भी टिक किया है, उसका आईडी वो XML फाइल में चेक करेगा। तो अगर अमेजिंग पे चेक किया है, अगर उसका आईडी है अमेजिंग, तो वो r.id.option 20%, राइट। हमने अमेजिंग को क्या आईडी दिया था 20%, तो वो अगर अमेजिंग पे अगर क्लिक किया तो वो 20% मतलब 0.20, अगर परसेंट से देखा जाए तो 20 है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.20। सेम एज अगर वो सेकंड यानी कि दूसरा था हमारा गुड, तो गुड रेडियो बटन पे अगर क्लिक करेगा तो 18% मतलब 0.18, और अगर एल्स थर्ड पे किया तो 0.15। सो ये था हमारा टोटल कैलकुलेशन ऑफ रेडियो बटन्स। ओके, अब हम यहाँ पे टिप कैलकुलेट करेंगे। अभी टिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक हमारे पास वेरिएबल है टिप जो हमने डिक्लेयर किया। अभी देखिए वेर और वेल, तो ये जो VAR है ये कभी भी चेंज हो सकता है। टिप जो है वो चेंज होगी, राइट। हमने अगर कॉस्ट चेंज की तो टिप भी चेंज होगी, इसलिए हमने VAR से डिक्लेयर किया जो कि चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे VAL है, तो VAL मतलब हमें क्या करना है, इम्यूटेबल वेरिएबल, हमें अमेजिंग के गुड के ओके के परसेंटेज चेंज करने नहीं है, इसलिए हमें उसको इम्यूटेबल वेरिएबल से डिक्लेयर किया है, मतलब उसको चेंज कर ही नहीं सकते, किया तो एरर देगा। ओके, ये जो फॉर्मूला है वेरिएबल टिप इक्वल्स टू टिप परसेंटेज इंटू कॉस्ट। अब टिप परसेंटेज कौन सा है, ये अगर उसने अमेजिंग को चूज़ किया तो उसका 20% है, राइट। और कॉस्ट यूज़र ने कितनी डाली है 200, तो 0.20 इंटू 200 कितना होगा 40, तो टिप यहाँ पे हमें मिल गई 40। अब जो राउंड अप का कंसेप्ट कि अगर हमें वैल्यू को टिप को राउंड अप करना है
तो यह क्या करेंगे हम, इफ द स्विच फॉर राउंडिंग अप द टिप टॉगल्ड ऑन, अगर उसको ऑन किया तभी, तो देखिए बाइंडिंग डॉट राउंड अप स्विच डॉट इज चेक्ड। इज चेक्ड मतलब क्या, अगर वो स्विच इनेबल है राउंड अप का, तो इफ राउंड अप इज इनेबल तो क्या करेगा, टिप इज इक्वल टू कोटलिन डॉट मैथ डॉट सील। अब ये मैथ डॉट सील कंसेप्ट है अलजेब्रा की, जहाँ पे सील फंक्शन क्या करेगा, राउंड अप करेगा। अगर 20.40 है तो उसको 21 कर देगा या 20 करेगा, राउंड अप करेगा। सो लाइक दैट वी हैव कैलकुलेटेड दी राउंड अप वैल्यू ईयर। और सीधे सीधे डिस्प्ले टिप एक फंक्शन है जहाँ पे हमने टिप को डिस्प्ले किया, राइट। जो हमारे पास यहाँ था टिप अमाउंट, तो ये जो टिप अमाउंट है यहाँ पे 40 है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे उसको डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले टिप, और उसमें हमने टिप पास की है। ओके, अभी नेक्स्ट है डिस्प्ले टिप फंक्शन। जो ये डिस्प्ले टिप है ना, जिसमें हमने टिप पास की है, वो यहाँ पर फंक्शन हम लिखेंगे। तो प्राइवेट फंक्शन डिस्प्ले टिप, जिसके अंदर टिप हमने पास किया है, जिसकी डेटा टाइप डबल है, तो कितना भी हो सकता है, बड़ा बड़ा वैल्यू भी हो सकता है। ओके, सो वी हैव फॉर्मेटेड टिप वेरिएबल हियर विच इज इम्यूटेबल। देन नंबर फॉर्मेट डॉट गेट करेंसी इंस्टेंस, शायद एग्जिबल ना हो तो ओके, डिस्प्ले टिप फॉर्मेटेड टिप इज इक्वल टू नंबर फॉर्मेट डॉट गेट करेंसी इंस्टेंस डॉट फॉर्मेट। ठीक, अब ये जो लाइन है पूरी, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने जो करेंसी यूज़ की है वो डॉलर यूज़ की है, राइट। तो वो डॉलर क्यों आई है, इस नंबर फॉर्मेट की वजह से, सॉरी इस नंबर फॉर्मेट की वजह से। नंबर फॉर्मेट जो है वो इनबिल्ट डॉलर का रहता है, तो इसलिए नंबर फॉर्मेट डॉट गेट करेंसी इंस्टेंस, तो करेंसी इंस्टेंस क्या है, डॉलर है, और उसको टिप उसके अंदर हमने पास की है। टिप जो भी निकली 20 या एक्सेट्रा, वो हम डिस्प्ले करेंगे इसके हिसाब से। बाइंडिंग डॉट टिप रिजल्ट डॉट टेक्स्ट गेट रिजल्ट आर स्ट्रीम डॉट टिप अमाउंट डॉट फॉर्मेटेड टिप। फॉर्मेटेड टिप क्या है, जो भी टिप हमारी निकली है डॉलर में 20 30 एक्सेट्रा, वो हमने टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले की है, टिप रिजल्ट के टेक्स्ट व्यू में, राइट। तो गया, ये तो गया टोटल। अभी हैंडल की इवेंट, तो इसको हाइड द कीबोर्ड, तो जब हम स्क्रॉल व्यू करके नीचे जाना होता है तो जो कीबोर्ड होता है वो हाइड होना चाहिए, इसलिए टोटल फंक्शन यूज़ किया है, प्राइवेट फंक्शन हैंडल की इवेंट, जिसके अंदर हम कीबोर्ड को हाइड करेंगे। तो ये टोटल जो है ये इनबिल्ट फंक्शन है एंड्रॉयड का, इनपुट मेथड सर्विस गेट सिस्टम सर्विस। तो सिस्टम सर्विस देगा कि जब हम चाहे तब जो कीबोर्ड है उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल टिप कैलकुलेटर है। किसी को कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ओके, सबको समझ में आया होगा शायद। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ क्या किया है। ये थे हमारे सारे पैकेजेस जो हमने इंपोर्ट किए। नीचे आएंगे तो हमारे पास है मेन एक्टिविटी, जिसमें हमने बाइंडिंग कंसेप्ट यूज़ किया है। अगर आपको बाइंडिंग के बताओ तो देखो, व्यू बाइंडिंग होता है, डेटा बाइंडिंग होता है। व्यू बाइंडिंग व्यू के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी एलिमिनेट हो जाता है पूरा। देखिए व्यू बाइंडिंग इज गूगल्स न्यू मेथड ऑफ रेफरेंसिंग व्यूज। इट जनरेट्स अ बाइंडिंग क्लास फॉर ईच ऑफ योर XML लेआउट फाइल्स एंड इट यूज टू इंटरेक्ट विद ऑल व्यूज। तो जितने भी व्यूज हम क्रिएट करेंगे XML फाइल में, व्यू बाइंडिंग जो है वो सबके साथ इंटरेक्ट करेगा, खुद ही फाइंड करेगा और खुद ही बताएगा कि यहाँ पर इसका आईडी है, इस व्यूज़ का ये आईडी है, 1A 2A 3A जो भी। तो यहाँ पे इन कंपैरिजन टू द वेल नोन मेथड सच एज Kotlin synthesis, butter knife and find view by ID, it provides safer and more concise way of handling view interactions inside your views. So ये सारे find view by ID, Kotlin synthetics, ये सब एलिमिनेट हो जाएगी बाइंडिंग यूज़ करने के बाद।
अब इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ नहीं बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि नल सेफ्टी, टाइप सेफ्टी, इंटरऑपरेबिलिटी, जैसे कि जावा और कॉटलिन हम इंटरऑपरेबल कर सकते हैं। इंजेक्शन कैपेबिलिटी, टाइप सेफ्टी में क्या आता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज विल बी करेक्टली टाइप्ड इवन विद कस्टम व्यूज। फिर स्पीड है, फिर कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे लार्ज ओवरहेड पॉसिबिलिटी, इट जनरेट क्लासेस फॉर XML बाय डिफॉल्ट, दिस could be large overhead if view binding is not used in all classes। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि बाइंडिंग, हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, कुछ में हम बाइंडिंग यूज़ करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे, तो वो ओवरहेड हो सकता है, ओवरलैप हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। मल्टीपल बाइंडिंग क्लास इंस्टेंस रिक्वायर्ड। तो ये कुछ बाइंडिंग थे हमारे। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको इनेबल करना होगा। जैसे कि इस ऐप में जाएंगे हम, ऐप में जाने के बाद RES, ग्रेडल स्क्रिप्ट में इस बिल्ड ग्रेडल में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड व्यू बाइंडिंग को ट्रू किया है। ट्रू किया है मतलब क्या किया है, इनेबल किया है। ओके, सो ये था व्यू बाइंडिंग का कंसेप्ट। तो इसके लिए तो बाइंडिंग से जो है हमारा जो काम है वो और भी आसान हो सकता है, फैन व्यू बाइंड न यूज़ करते हुए। उस प्रिसाइज है, कंफर्टेबल है और इजी भी है, कोड को रन करता है अच्छे से ये विदाउट एरर। तो ये हो गया बाइंडिंग। और जो हमारा पूरा कोड था कैलकुलेट टिप के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद कॉस्ट है यूज़र से हम जो लेते हैं, वो अगर ज़ीरो होगी तो हम 0.0 रिटर्न करेंगे। टिप परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ रेडियो बटन्स, अमेजिंग 20%, गुड 18% एंड ओके 15%। तो हम यहाँ पे टिप परसेंट इंटू कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और टिप को राउंड अप करेंगे। अगर स्विच इनेबल होगा तो वो राउंड अप करेगा टिप को math.ceil फंक्शन यूज़ करके, और हम डिस्प्ले करेंगे उसको यहाँ पर बाइंडिंग डॉट टिप रिजल्ट में। तो ये था टोटल हमारा टिप टाइम का प्रोजेक्ट, टिप कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। तो ये जो बाइंडिंग कंसेप्ट है, ये बाइंडिंग कंसेप्ट आता है एंड्रॉयड जेट पैक। तो एंड्रॉयड जेट पैक बहुत बड़ा एक पैकेजेस का बहुत बड़ा क्राउड है, जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस है, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पैकेजेस हियर। तो उन पैकेजेस में से डेटा बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग, ये कुछ पैकेजेस है जो हमने यूज़ किए। जैसे कि यहाँ पर दिया है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी इज अ सपोर्ट लाइब्रेरी दैट इनेबल्स यू टू बाइंड UI एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, सपोर्ट लाइब्रेरी है जो UI एलिमेंट्स, मतलब जो हमारे XML में जो एलिमेंट्स है वो लेआउट्स डेटा सोर्सेस के साथ कनेक्ट करेगा, मतलब कोटलिन फाइल के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, ऑफन टाइम्स लेआउट्स आर डिक्लेयर्ड इन एक्टिविटीज विथ कोड दैट कॉल्स UI फ्रेमवर्क मेथड्स। फॉर इंस्टेंस द कोड बिलो कॉल्स, जो बिलो कोड है, फाइंड व्यू बाय ID टू लुक अप फॉर अ टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू TXT व्यू फाइंड व्यू बाय ID r.id.text डेमो, और फिर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट व्यू मॉडल डॉट गेट ईमेल। तो जो टेक्स्ट व्यू है वो टेक्स्ट व्यू है ईमेल का, तो हम यहाँ पे फाइंड व्यू बाय ID करेंगे। व्हेन वी विल डू फाइंड व्यू बाय ID, इट विल चेक दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट डेमो ID एंड उस टेक्स्ट बॉक्स में वो ईमेल फाइंड करेगा, मतलब ईमेल गेट करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा बाइंडिंग यूज़ करके टेक्स्ट व्यू एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट इक्वल टू @ व्यू मॉडल डॉट यूज़र नेम, सीधा सीधा यहाँ पे यूज़र नेम ईमेल जो भी है वो आप दे सकते हैं। ये था ओवरऑल कंसेप्ट डेटा बाइंडिंग का। दिस इज वेरी ह्यूज कंसेप्ट, you will require some time to study it. So this was just a demo to this particular application. Okay. So I think till here, if anybody is having any doubt, you can ask, you can put in the chat box, comment box, or you can directly message me. I will be always there to help you
Okay, so this was the last session of our 100 study jams session 3. So I request you to complete both the tracks. I will put the link for particular both the tracks in the description box. So please check it and complete it. So thank you all. And now I will close this session. Thank you.